Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll get some information on two 3D solids, which is cuboid and cube. We'll derive the formulae for surface areas and volumes of cuboid and cube. But before that, let us understand what is solid, what is volume and what is surface area. So starting with solid, anything which occupies space and has a definite shape. So this board is a solid, it has some definite shape, it is occupying some space, right? This duster is a solid, it has some definite shape, it is occupying some space. You have learned about definition of solid in science as well, right? So you must be having a clear idea. The cupboard in your room is a solid, it has a definite shape, it is occupying some space, right? Same way the bed or Rubik's cube consider karo. Okay, so cupboard is an example of cuboid, roughly a cuboid. Rubik's cube is an example of cube. Okay, so we are going to talk about the surface areas and volumes of cuboid and cube only. All right, now second, volume, the space occupied by a solid. So कोई भी सॉलिड अगर मैं कंसिडर करूं, इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. द कबर्ड इन योर रूम इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. अब ये स्पेस 3 डायमेंशनल स्पेस है बिकॉज द कबर्ड हैज सम हाइट, कुछ हाइट है कबर्ड का, कुछ विड्थ है, राइट? सो पीछे से आगे तक कुछ विड्थ है, कुछ लेंथ है. सो इट हैज सम लेंथ, इट हैज सम विड्थ, इट हैज सम हाइट. सो 3 डायमेंशन में ये स्पेस को मैं मेजर करती हूं. ठीक है, सो इफ आई कंसिडर, लेट्स से दिस इज द बॉक्स विच इज अ कबर्ड. ओके, स्मॉल मॉडल ऑफ अ कबर्ड. तो ये एक एग्जाम्पल है क्यूबॉइड का, रफली अ क्यूबॉइड. ठीक है, सो कबर्ड इज नॉट एग्जैक्टली अ क्यूबॉइड, इट माइट नॉट बी, थोड़ा कर्व्ड रहता है, डिपेंड्स. ठीक है, सो ये जो बॉक्स है इट इज अ क्यूबॉइड, इट हैज सम हाइट. तो कबर्ड का भी कुछ हाइट है, कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है, राइट? सो सेम वे ये बॉक्स कंसिडर करो, कुछ भी रूबिक्स क्यूब कंसिडर करो, कंसिडर दिस बॉक्स. ठीक है, अगर मैं ये बॉक्स क्लोज कर दूं तो दिस इज अ क्यूब. ओके, सो दिस एज वेल इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. A, the capacity of a container is equal to its internal volume. When I'm talking about a container, मैं अगर ऐसे इसको होल्ड करूं, so this is a container, right? I can place some chocolates inside it, I can place sand inside it, मैं papers का stack place कर सकती हूँ, whatever I want to fill inside. ठीक है, besides liquid, cardboard है, so I cannot put liquid inside it. So over here, this behaves like a container. Right? Now the capacity of the container, that is, मैं कितना इसके अंदर sand fill कर सकती हूँ. That capacity, that volume of sand which can be filled inside this box is equal to its internal volume. अंदर का volume कितना है? Okay, so if I know its internal volume कैसे मिलेगा? By finding out its internal dimensions. ठीक है, इंटरनल लेंथ, ब्रेथ, हाइट अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया, देन आई कैन इजिली फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर, ऑफ दिस बॉक्स. ऑलराइट, सेम वे इफ आई कंसिडर दिस बॉक्स, तो ये बॉक्स में भी मैं कितना चॉकलेट्स प्लेस कर सकती हूँ. चॉकलेट्स भूल जाते हैं, लेट्स से सैंड ओनली. ठीक है, तो मैं क्या क्वांटिटी का सैंड इसमें फिल कर सकती हूँ, आई कैन इजिली फाइंड आउट इफ आई नो इट्स इंटरनल वॉल्यूम. तो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, इट इज इट्स इंटरनल वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम कितना है. ओके, आउटर वॉल्यूम नहीं. ऑलराइट, बिकॉज दिस बॉक्स हैज सम थिकनेस, तो अंदर के डायमेंशंस थोड़े से छोटे होंगे कंपेयर टू आउटर डायमेंशंस. सेम वे फॉर दैट बॉक्स. ओके, इट्स आउटर डायमेंशंस एंड इनर डायमेंशंस विल वेरी अ लिटिल बिकॉज आउटर पार्ट का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट थोड़ा ज्यादा होगा, इनर का लेंथ, ब्रेथ, हाइट थोड़ा कम होगा, राइट? बिकॉज दिस बॉक्स हैज सम थिकनेस. सो कैपेसिटी इज इट्स इंटरनल वॉल्यूम. आई होप इट्स क्लियर. कैपेसिटी बोलो, क्वांटिटी बोलो, वॉल्यूम बोलो, ओके, इट्स
synonyms, ये सारे synonyms हैं. B, the volume of material in a hollow body, it is equal to its external volume minus its internal volume. So अभी ये जो box है, it is made up of cardboard, right? So how much cardboard was required to make this box? The volume of material in a hollow body, ये hollow है because अंदर से empty है, right? So how much cardboard was required to make this hollow box? I can find out by finding its external volume and internal volume and then subtracting it. Now, ये cardboard का कुछ बाहर का dimensions है, length, breadth, height, right? So if I know its outer dimensions, if I know its inner dimensions, I just need to measure with the help of a scale or tape, right? So outer dimensions पता है, inner dimensions पता है. I can find out the outer volume of the box, I can find out the inner volume of the box. दोनों को subtract करके जो volume मिलेगा, that volume of cardboard was required to make this box. Alright, I hope you are understanding. ये box है, ये box cardboard का बना है. How much amount of cardboard was required to make this box? I can easily find out by finding the external volume and internal volume and subtracting it. Okay, same way the cardboard required to make this, forget ये part है, ये part है, ये भूल जाओ, ठीक है? Forget these parts, ये भूल जाओ, and forget this as well. So this is a perfect cube now, ठीक है? This part and these. So यहाँ पे again how much cardboard was required to make this, and to make this? I can easily find out by finding out the external volume and internal volume and subtracting the two. Alright, one more random example we'll consider. ये कुछ perfect shape नहीं है, लेकिन if I want to find out how much amount of plastic was required to make this chocolate का container, then what I need to do, outer dimensions find out करो, inner dimensions find out करो, outer volume मिल जाएगा, inner volume मिल जाएगा, तो कितना plastic लगा ये बनाने में, I can easily find out. Okay, so volume of material in a hollow body, material कितना लगा है container बनाने में, okay, that is external minus internal, and capacity means internal only, अंदर में कितना fill कर सकती हूँ, what volume of chocolate I can put inside this. Okay. Third, surface area of a solid, the sum of the areas of all the surfaces of a solid. Now, this box. Now, यहाँ पे कितने faces है ये box के? 4 side faces, right? 1, 2, 3, 4. 4 side faces है. 1 top, 1 bottom. तो 6 sides है. तो ये 6 sides का area, okay, area of these 6 faces, सबका sum is the total surface area of the solid. Okay, the total surface area of this box will be the area of this top part, bottom part and these 4 walls. ठीक है? So same way if I consider this box. Now when you are considering this box, again we are not going to consider these flaps. ठीक है? So ये सारा additional हो गया. Okay, we are not considering these cases जहाँ पे flaps है. Just forget the flaps. ये एक box है, ठीक है? Cube है, okay, जिसका 6 sides है, top, bottom and 4 sides, right? So sum of the areas of the 4 sides and top and bottom, that is 6 sides का area कितना है, ये find out करके add करके I will get the surface area of this solid, that is the surface area of this box. All right, so I hope it is clear, students, that what is surface area, what is volume, and solid, of course, you know. Okay, so volume is basically the space occupied by any solid. Okay, so again I'll consider one more example. अगर volume के terms में consider कर रहे, ये जो thermocol है, okay, this is not hollow, तो इसका volume क्या होगा? If I know its 3 dimensions, I can easily find out its volume. ठीक है? And when we are talking about capacity, capacity of the container is its internal volume. अंदर का volume कितना है?
Volume of the material in the hollow body is its external volume minus internal volume, and the surface area of the solid is nothing but the sum of the areas of all the sides. Okay, now surface area may be lateral surface area hai, total surface area hai, we'll have a look at that. Alright, so now moving on to the cuboid, we'll derive the formulae for surface areas and volume of cuboid. Cuboid, 6 faces, each rectangle. This book is an example of cuboid. A fish tank is an example of cuboid. A door at your home is an example of cuboid. So I hope it is clear to you students what is a cuboid. Length, breadth and height hoga. That 3D figure is nothing but a cuboid. Okay. Now cuboid has 6 faces and each face is a rectangle. This book, okay, ये cuboid है. इसका फ्रंट कवर अगर मैं देखूं, ओके, फ्रंट कवर, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस फेस इज अ रेक्टेंगल, कुछ लेंथ है, ब्रेड्थ है, सो ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया. सेम वे इसका बैक रेक्टेंगल है. सो फ्रंट एंड बैक, 2 फेसेस रेक्टेंगल, राइट. रिमेनिंग 4 फेसेस ये साइड के. सो दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना, लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है, ये रेक्टेंगल का शेप है. सेम वे दिस इज ऑल्सो एन रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल का शेप है. दिस एज वेल एंड दिस. सो ऑल 6 फेसेस आर हैविंग द शेप ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? It is length into breadth into height, L into B into H. We know that. How? Let us see. ये बुक में ये जो फ्रंट कवर है, ये फ्रंट कवर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट. सो ये फ्रंट कवर का एरिया इज नथिंग बट दिस लेंथ, यहां से यहां जो लेंथ होगा इंटू दिस ब्रेथ, विच आई कैन इजिली फाइंड आउट, राइट. नाउ सेम वे ये बैक कवर का भी एरिया सेम होगा क्योंकि सेम लेंथ है, सेम ब्रेड्थ है, राइट. जैसे फ्रंट कवर का है वैसा ही बैक कवर का लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा, सेम टू सेम. सो बैक कवर विल ऑल्सो हैव सेम एरिया. ऑल्सो द पेजेस इनसाइड, ईच पेज विल बी हैविंग सेम लेंथ एंड सेम ब्रेड्थ, करेक्ट. सो ये पूरे बुक में each and every page is having same length and same breadth. That is, हर एक पेज का एरिया सेम है, करेक्ट. फ्रंट कवर से लेके बैक कवर तक एवरी पेज हैज सेम एरिया, विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया ऑफ ईच पेज इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. Now this book is occupying some space, है ना, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. अब ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है सिर्फ एरिया के टर्म्स में ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है. ओके, अगर मैं ये बुक को ऐसे रख रही हूं ऑन माई पाम और ऑन द टेबल, तो टेबल में ये पूरा एरिया उसको टच करेगा, तो ये एरिया तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना. बट एट द सेम टाइम ये बुक का थिकनेस है, कुछ थिकनेस है, राइट. दैट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, है ना. इसके ऊपर मैंने पूरा पाइल बना दिया सेम बुक का, पूरा ऐसे 15-20 बुक्स रखा है सेम डायमेंशंस का. सो कुछ थिकनेस है, तो हाइट के टर्म्स में भी कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, राइट. सो देयर इज नॉट जस्ट एरिया बट ऑल्सो सम हाइट, दिस थिकनेस. सो ये हर एक पेज का थिकनेस भी कंसिडर करना है. ये पूरा एड अप होके यहां से यहां तक इसका थिकनेस, दैट इज हाइट होगा बुक का. सो द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, दिस बुक इज नथिंग बट दिस एरिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू दिस थिकनेस, दैट इज दिस हाइट. ऑल राइट. सो volume of the cuboid will be
length into breadth, that is area. Area of each page, हर एक पेज का थिकनेस कंसिडर करो तो टोटल थिकनेस ये हुआ into this thickness which is height. Okay, so that is why it will be L into B into H, area into the height. Okay, so volume is L into B into H. Okay, I hope it is clear. Now total surface area. Total surface area of cuboid, 6 faces है cuboid के. Okay, so what will be the total area of all the 6 faces? We'll have a look at that. Now to find total surface area, we'll consider this box. ठीक है. Now इसका total surface area find out करना है. That is ये 6 faces है इसके, top, bottom and 4 sides, right? So total 6 faces है. 6 फेसेस का एरिया एड अप करके टोटल सरफेस एरिया मिलेगा इसका. बिफोर दैट आई नो टॉप का जो एरिया है, टॉप का जो एरिया है ये बॉक्स का, एंड बॉटम का जो एरिया है, दोनों सेम होगा. करेक्ट, दोनों के डायमेंशन सेम है. आई कैन सी इसका जो एरिया होगा एंड इसका जो एरिया होगा, टॉप एंड बॉटम एरिया विल बी सेम. सो ऑपोजिट फेसेस का एरिया विल बी सेम. ओके, फॉर अ क्यूबॉइड ये टॉप का एंड बॉटम का, इसका ऑपोजिट फेस बॉटम वाला है. ऑपोजिट फेसेस विल हैव सेम एरिया. सेम वे ये जो लॉन्गर फेस दिख रहा है, ओके, ये बॉक्स का ये वाला लॉन्गर फेस, दिस लॉन्गर फेस एंड इसका ऑपोजिट वाला ये फेस, दोनों का एरिया सेम होगा. सेम वे ये शॉर्टर फेस है, इसका एरिया जो होगा एंड इसका एरिया जो होगा, बोथ विल बी सेम. ओके, सो बेसिकली 3 साइड्स का एरिया, दैट इज 3 फेसेस का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है. 3 फेसेस का एरिया मिल गया, देन ऑपोजिट फेसेस का एरिया सेम ही रहेगा. ऑल राइट, सो 3 डायमेंशंस होगा इसका क्यूबॉइड का, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट. ऑल राइट, सो पहले टॉप एंड बॉटम कंसिडर करते हैं. ठीक है, टॉप एंड बॉटम का एरिया सेम होगा, मुझे पता है. नाउ यहाँ पे, यहां से यहां तक ग्रीन लाइन जो मैंने मार्क किया है, ओके, दिस आई एम टेकिंग एज लेंथ. ओके, दिस आई एम टेकिंग एज लेंथ. सो दिस ग्रीन लाइन यहां से यहां तक, दिस इज द लेंथ. ओके, ये जो रेड में मार्क किया है यहां पे ये एज पे, दिस इज द ब्रेड्थ. ऑल राइट, सो दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ, जो रेड में मार्क किया है ब्रेड्थ. एंड ये जो है, दिस इज द हाइट ऑफ द बॉक्स. ऑल राइट, सो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ऑल राइट, ये जो बॉटम फेस है, ओके, इसका एरिया क्या होगा, दिस ग्रीन लाइन का लेंथ इंटू दिस रेड लाइन का लेंथ. दैट इज ग्रीन लाइन इज नथिंग बट लेंथ, red line is breadth, so length into breadth will give me the area of this bottom face. Okay, top का भी same होगा, L into B होगा, क्योंकि same length same breadth. Okay, so area will be same as that of the bottom face. ठीक है, so top and bottom faces का area will be LB plus LB. करेक्ट, ये बॉटम फेस का L into B है, ग्रीन इज L, रेड इज B, L into B, एंड सेम वे टॉप का L into B, दैट इज LB, LB plus LB twice LB. नाउ दिस, ये शॉर्टर फेस कंसिडर करते हैं. ये शॉर्टर फेस का एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इसका जो लेंथ है दैट इज रेड लाइन. ओके, दिस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट. करेक्ट, ब्रेड्थ इनटू हाइट, ब्रेड्थ इनटू हाइट विल गिव मी द एरिया ऑफ दिस शॉर्टर फेस. इसके ऑपोजिट वाला फेस जो है, दिस शॉर्टर फेस, सेम ब्रेड्थ इनटू हाइट. सो area of shorter faces
BH plus BH, breadth into height plus breadth into height, that is twice BH, correct? Area of longer faces, ये जो लॉन्गर फेस दिख रहा है, ओके, इसका ऑपोजिट भी ये लॉन्गर वाला फेस, ग्रीन लाइन दिख रहा है, इट इज लेंथ, ये ब्लैक दिख रहा है, इट इज हाइट. So length into height will give me the area of this face. So length into height and length into height, that is LH plus LH. LH plus LH, that is twice LH. अब ये सारे फेसेस का एरिया मुझे एड अप करना है, राइट? टॉप एंड बॉटम का जो टोटल एरिया है दिस, शॉर्टर फेसेस का जो एरिया है टोटल दिस, एंड लॉन्गर फेसेस का एरिया दिस, ऑल द थ्री आई विल एड अप. सो दैट इज नथिंग बट ट्वाइस LB प्लस ट्वाइस BH प्लस ट्वाइस LH. 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो आई विल गेट ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH. सो टोटल surface area of cuboid is twice LB plus BH plus LH. All right, this is the total surface area. All right, volume is L into B into H. Volume का यूनिट क्या होगा? Volume का SI यूनिट will be meter cube or cubic meter. Okay, so cubic meter or cubic centimeter. यूनिट्स याद रखो, 3 डायमेंशंस है, राइट? 3 डायमेंशंस, मीटर मीटर मीटर, क्यूबिक मीटर होगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे 2 ही है, राइट? सो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर. ओके, सो और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर. सो आइदर स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर. सेम वे लैटरल सरफेस एरिया का भी सेम ही होगा, ठीक है, सेम होगा. यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स. अगर तुम अपना रूम कंसिडर कर रहे हो, लेट्स से द रूम इज ऑफ शेप ऑफ क्यूबॉइड, ऐसा शेप का है, ठीक है, दिस इज द रूम, ऐसे 4 वॉल्स है, साइड के सर्फेसेस कंसिडर करो, दीज आर द 4 वॉल्स ऑफ योर रूम. फ्लोर नहीं कंसिडर करेंगे, ओनली वॉल्स, ओनली वॉल्स. ओके, सो लैटरल सरफेस एरिया का जब मैं बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट 4 वॉल्स, नॉट द टॉप नॉट द बॉटम, सीलिंग या फ्लोर का बात नहीं कर रहे हैं, ओनली 4 वॉल्स. ओके, इसका एरिया क्या होगा? बहुत इजी है, लॉन्गर फेसेस का एरिया एंड शॉर्टर फेसेस का एरिया. ये 2 लॉन्गर फेसेस है, इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ लॉन्गर फेसेस, इट इज ट्वाइस LH. ये वॉल का एरिया, ये वॉल का एरिया, राइट? L into H, L into H, that is twice LH, करेक्ट. एंड ये शॉर्टर फेसेस का एरिया which we just found, it is BH plus BH twice BH. So only 4 walls का एरिया एड अप करना है, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया. ऑलराइट, 2 कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा? एंड H भी कॉमन ले लिया, H भी कॉमन जाएगा, सो ट्वाइस H L प्लस B, राइट? दिस विल बी द लैटरल सरफेस एरिया. ऑलराइट, सो अगेन सेम यूनिट होगा. ओके, एरिया का बात हो रहा है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड. बिफोर दैट, व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड? नाउ स्टूडेंट्स, ये क्यूबॉइड में ये एज, आई एम कंसिडरिंग दिस एज, ओके, ये एज से लेके इसका ऑपोजिट वाला एज, दिस एज, सो डायगोनली में जा रही हूं, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट डायगोनल, ये एज का ऑपोजिट एज, दिस एज, ओके, डायगोनल यू विल कंसिडर फ्रॉम टॉप ऑफ दिस एज, ओके, इसके टॉप से लेके
ये एज के बॉटम तक। ऑलराइट, सो डायगोनल इज नथिंग बट अ लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ दिस एज, ये एज के टॉप से इसका ऑपोजिट एज, डायगोनली ऑपोजिट एज जो है उसके बॉटम तक जो लेंथ होगा, दैट इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, सो डायगोनली ऑपोजिट एजेस, ऑलराइट, यू कैन कंसिडर दीज टू और दीज टू सेम ही मिलेगा, ठीक है। सो एजेस में ऑपोजिट एज, ओके, ये एज का टॉप से लेके ये एज के बॉटम तक जो लेंथ है दैट इज द डायगोनल, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल? आई एम कंसिडरिंग फ्रॉम टॉप ऑफ दिस एज टू बॉटम ऑफ दिस एज, ठीक है, यहां तक। इसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर दैट आई विल ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं यहां पे। ये एज ये पॉइंट से लेके यहां तक, ठीक है। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, आई एम नॉट बीइंग एबल टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मैं फ्री हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सो इमेजिन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। आई विल रिपीट, ये एज के टॉप से ये एज के बॉटम तक ये डायगोनल होगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस ribbon, this black line and this edge, ये जो edge है, okay, जो मैंने black में mark किया है, the three are forming a triangle form हो रहा है। this is going like this from top to bottom, ये पूरा straight line है, ये पूरा straight line है, तो ये पूरा triangle हो गया, right? Focus on this black line, this ribbon and this edge, okay? So from here to here, this is a triangle, a right angled triangle, correct? Right angled triangle है ये। I'll draw this, ये जो मैंने black line draw किया, ये जो मैंने black line draw किया, ठीक है, this is the edge, okay, edge, and ये जो ribbon यहां से यहां तक मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज दिस एज एंड दिस बॉटम, ये जो लाइन है दोनों के बीच में राइट एंगल है, करेक्ट, एंड यहां से लेके यहां तक ये हाइपोटेनस हो गया, राइट, ये डायगोनल हाइपोटेनस हो गया। सो बेसिकली डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, रिबन का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, दिस इज द रिबन, ओके, जो डायगोनल है, ये रिबन का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आई नीड टू नो दीज टू लेंथ्स। I can apply Pythagoras theorem, right? So I need to know इसका लेंथ, यहां से यहां जो डायगोनल ड्रॉ किया है मैंने, दिस इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल में ये जो डायगोनल है इसका लेंथ एंड ये एज का लेंथ, दिस एज ब्लैक में जो मार्क किया हुआ है इट इज हाइट, दिस इज द हाइट, सो ये हाइट है, ठीक है। ये डायगोनल क्या होगा? ये डायगोनल, नाउ दिस डायगोनल यहां से यहां जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सेम यहां से यहां जो ड्रॉ किया है इसके पीछे आई विल ड्रॉ ओवर हियर ये डायगोनल। नाउ इफ यू लुक एट दिस, यहां पे मैंने ड्रॉ किया यहां से यहां, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग ओवर हियर आई ड्रू इट ओवर हियर। नाउ दिस रेक्टेंगल का ये डायगोनल है, आई नो दिस ग्रीन लाइन इज द लेंथ, दिस रेड लाइन इज द ब्रेड्थ, राइट, सो ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ ही होगा, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, तो डायगोनल विल बी व्हाट? डायगोनल विल बी व्हाट? आई नो द रिलेशन, दिस इज द ब्रेड्थ, दिस इज द लेंथ, तो डायगोनल क्या होगा? आई कैन फाइंड आउट इट्स लेंथ, क्या होगा? द रिलेशन विल बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, राइट, साइड 1 एल है, साइड 2 बी है,
Okay, L square plus B square is equal to D square. That is, D is equal to root of L square plus B square. Correct? So ये जो diagonal black वाला, ये जो diagonal है, that is this diagonal. Okay, this is nothing but root of L square plus B square. This is nothing but root of L square plus B square. And ये जो है edge, this is height, right? This is h. So this is root of L square plus B square. This is root of L square plus B square. This is h. तो ये ribbon जो hypotenuse form कर रहा है, it is related to the two sides. Again Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, रिबन का लेंथ क्या होगा? रिबन का जो भी लेंथ है, ओके, दैट लेंथ का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर प्लस रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर. करेक्ट? साइड 1 स्क्वायर साइड 2 स्क्वायर का सम इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. Now square root and square cancel out हो जाएगा, right? So ultimately you will be left with h square plus L square plus B square. तो रिबन का जो लेंथ है, that length square is equal to h square plus L square plus B square. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, L B H के टर्म्स में लिख लेते हैं. So L square plus B square plus H square. रिबन का लेंथ स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ द साइड्स, देन यहां पे स्क्वायर हट जाएगा एंड यहां पे स्क्वायर रूट पुट हो जाएगा. ऑल राइट, सो स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, सम ऑफ यू माइट से कि L स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, L बाहर आ जाएगा प्लस B प्लस H. नो, when there is plus or minus sign in between, you cannot take the number outside the root. You cannot find out the square root. All right, you cannot find out the square root. So यहाँ पे L square plus B square plus H square है, so it will not be L plus B plus H. No. All right. So numbers put करके देखो, you will get an idea. ठीक है? So if you consider square root of 2 square plus 3 square plus 4 square, so it will not be equal to square root of 2 square, square root of 3 square, square root of 4 square. इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, मैच नहीं होगा. ठीक है, सेम नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बीच में प्लस साइन है. तो रूट के अंदर प्लस या माइनस साइन है तो उसका स्क्वायर रूट तुम नहीं फाइंड आउट कर सकते हो. पूरा अंदर सॉल्व करके फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ऑल राइट, सो रिबन का जो लेंथ है, दैट इज ये जो डायगोनल का लेंथ है, यहां से यहां जो डायगोनल का लेंथ है, फ्रॉम टॉप ऑफ वन एज टू बॉटम ऑफ द अदर एज, दिस रिबन का लेंथ इज नथिंग बट रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. सो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. लेंथ का बात हो रहा है तो मीटर या सेंटीमीटर में होगा. ओके, सो इट विल बी इन मीटर और सेंटीमीटर. सॉरी, cube 6 faces each square. Now we know cube as well has 6 faces, top, bottom and 4 side का walls. So 6 faces है. Here each face is a square. Okay, in cuboid it was rectangle. Here each face is square. So over here you can see ये square है. That is length and breadth दोनों same है ना? लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम है, सो ये स्क्वायर हो गया. सेम वे यहां पे भी लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम होगा, लेंथ ब्रेथ सेम, सो एरिया विल बी स्क्वायर. ये फेस भी स्क्वायर, ये फेस भी स्क्वायर होगा.
Top and bottom again same thing. Okay, so length and breadth is same. बेसिकली इन क्यूबॉइड वी हैव सम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, है ना, कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट रहता है. यहां पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही सेम है. ओके, लेंथ ब्रेथ हाइट इज सेम. सो ओवर हियर दिस आई हैव मार्क्ड. यहां पे ये जो एज मार्क किया है, ये जो एज मार्क किया है एंड ये जो एज मार्क किया है ब्लैक. ओके, आई हैव मार्क्ड इट विथ ब्लैक पेन. These edges have same length. So length, breadth, height तीनों ही same है. Okay. So length, breadth, height is same. That is why area of each face will be same. It will be a square. Okay. Each face will be a square. So length, breadth, height equal है. Let's say it is equal to A. Okay. So basically side we are going to consider over here because each side is equal. Each edge का length is equal. कोई भी edge पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, any edge it will have same length. Okay. Supposingly ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा. All the edges will be having same length. Okay. So length, breadth, height is same. We are taking it as A. Okay. Now volume क्या होगा? What is the volume of cuboid? Length into breadth into height. क्यूब का भी सेम होगा, क्यूब का भी सेम ही होगा, राइट? ये जो एरिया है, ये एक फेस का एरिया कंसिडर करते हैं. ये एक फेस का जो एरिया है, ओके, दैट एरिया टाइम्स दिस थिकनेस. दिस एरिया टाइम्स दिस थिकनेस. So area into the thickness. ये बॉक्स सिर्फ ये एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ये कुछ हाइट में भी है, राइट, कुछ थिकनेस भी है. सो दिस एरिया इज नथिंग बट साइड स्क्वायर. ईच साइड इज सेम, है ना, ये साइड एंड ये साइड सेम है, तो ये स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर. एरिया इनटू दिस हाइट. अब हाइट भी सेम है, ए ही है, सो इट इज A into A, area is A into A square into height which is again A square into A क्या होगा? A cube. Okay, length, breadth, height तीनों सेम है, so length into breadth into height, that is A into A into A will be A cube. So volume of cube is A cube. Now यहाँ पे यूनिट क्या होगा? क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, बहुत बड़ा है तो क्यूबिक किलोमीटर. ऑल राइट. सो नॉर्मली क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही होगा. एरिया का बात करेंगे तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर. सो वेर एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया, स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द यूनिट. ओके. एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इट विल बी मीटर और सेंटीमीटर. लेंथ का बात हो रहा है तो मीटर सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर. ओके. टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा क्यूब का? सम ऑफ द एरिया ऑफ ईच फेस का एरिया मुझे ऐड करना है. 6 फेसेस है. नाउ ईच फेस इज अ स्क्वायर. स्क्वायर का एरिया क्या होगा यहाँ पे? लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही ए है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों ही ए है, राइट. सो अगर मैं ये फेस का एरिया कंसिडर कर रही हूँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इट इज नथिंग बट ए इंटू ए स्क्वायर. करेक्ट. सो एवरी फेस का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर. करेक्ट. इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर. ऑल राइट. सो 6 फेसेस है, 6 फेसेस का एरिया ए स्क्वायर, दैट इज 6 टाइम्स ए स्क्वायर. सो इट विल बी 6 टाइम्स ए स्क्वायर, राइट. स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट. ओके. लैटरल सरफेस एरिया, दैट इज 4 वॉल्स का एरिया, टॉप एंड बॉटम, सीलिंग एंड फ्लोर नहीं कंसिडर करते हैं, ओनली 4 वॉल्स, ओनली 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का ही एरिया कंसिडर करना है. अगेन ईच वॉल इज अ स्क्वायर. हर एक का एरिया क्या होगा? ए इंटू ए स्क्वायर. इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर. सो 4 टाइम्स ए स्क्वायर.
वेरी इजी स्टूडेंट्स, वंस यू नो द फॉर्मूले ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। सो 4a², लेंथ ऑफ द डायगोनल, नाउ लेंथ ऑफ द डायगोनल सेम लॉजिक है, यहाँ पे ये बॉक्स में कोई भी दो एजेस कंसिडर करो, यहाँ पे ये दो एजेस और ये दो एजेस, कोई भी दो एजेस कंसिडर करो। अब ये एज में ये दो एजेस, ऑपोजिट एजेस अगर मैं कंसिडर करूं, इफ आई कंसिडर दीज टू ऑपोजिट एजेस, ठीक है, दिस एज एंड दिस एज, ये एज और इसका डायगोनली ऑपोजिट दिस एज, ये एज के टॉप से लेके ऑपोजिट एज के बॉटम तक जो मैं ड्रॉ करूंगी, जो मैं ये रिबन स्ट्रेच करूंगी, ओके, दैट विल बी द डायगोनल। सो एक एज के टॉप से लेके दूसरे एज के बॉटम तक डायगोनल मिलेगा मुझको, ऑलराइट। सो लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ रबर बैंड। सो ये एज, ओके, एज, इसका डायगोनली ऑपोजिट एज, नाउ एक एज के टॉप से लेके, ये एज के टॉप से लेके इसका डायगोनली ऑपोजिट एज के बॉटम तक ये डायगोनल मिलेगा मुझको, ओके, दिस इज द डायगोनल, ऑलराइट। सो लेट मी so if I consider ये एज के टॉप से लेके इसका डायगोनली ऑपोजिट एज के बॉटम तक ये डायगोनल होगा, ओके, दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूब। अगेन वील फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, तो लेंथ ऑफ दिस डायगोनल क्या होगा, सेम लॉजिक अप्लाई करना है जो क्यूबॉइड में अप्लाई किया था। फॉर दिस आई विल ड्रॉ अ लाइन, ये जो एज मैंने कंसिडर किया था, ये एज रेड में मार्क कर रही हूं मैं, दिस एज, ये एज से लेके ये एज के बॉटम तक जा रहे हैं, तो ये टॉप से लेके बॉटम तक, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, अज्यूम इट इज स्ट्रेट, ओके, ये जो है लाइन, so you can see this line and this line both are making 90 डिग्री, ये ऐसे वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, एंड ये जो रबर बैंड मैं ले रही हूं फ्रॉम हियर टू हियर, दिस डायगोनल ऑफ द क्यूब, you can see the three lines are making a triangle, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज अ राइट एंगल एंड दिस इज द हाइपोटेनस, करेक्ट, ये हाइपोटेनस बन रहा है। सो आई नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेनस, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस रबर बैंड, ये डायगोनल का लेंथ। सो अगेन आई विल ड्रॉ दिस, इसका लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, ओके, ये डायगोनल यहां से यहां तक। फॉर दैट आई नीड टू नो ये लाइन का मेजरमेंट, ओके, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन, ये मुझे पता है, एवरी एज का लेंथ मुझे पता है, इट इज ए, है ना, ये ए है, तो ये एज जो है ये ए है, ये जो यहाँ पे वर्टिकल एज है ये ए है, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, नाउ इसका लेंथ इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट द हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर अंदर में मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूं, इफ आई कंसिडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ओके, तो दिस ऐसे ऐसे है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट, ये एंड ये मुझे पता है, ये एजेस का लेंथ मुझे पता है, ये एज एंड ये एज, इट इज ए, दिस इज ए, राइट एंगल्ड है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर, ये डायगोनल तो ये ले रही हूं, तो आई एम नॉट टेकिंग दिस एज डायगोनल, हाइपोटेनस स्क्वायर is equal to side 1 square plus side 2 square, that is a square plus a square, that is 2a square,
करेक्ट. सो आई कैन से हाइपोटेनस का लेंथ इज नथिंग बट रूट ऑफ 2a स्क्वायर. करेक्ट. स्क्वायर रूट लेके आई विल गेट रूट ऑफ 2a स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज रखते हैं, a स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, a. करेक्ट. आई कैन राइट दिस एज रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर. बीच में मल्टीप्लीकेशन या डिविजन साइन है तो मैं रूट को सेपरेट कर सकती हूँ, बट इफ इट इज प्लस और माइनस यू कैन नॉट. दैट इज द रीजन क्यूबॉइड में नहीं किया था. ओके, प्लस और माइनस साइन है देन यू कैन नॉट स्प्लिट द रूट. सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, 2 इंटू ए स्क्वायर है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए, दैट इज रूट 2a होगा. ओके, तो हाइपोटेनस का लेंथ रूट 2a. दिस इज रूट 2a, दिस इज a. अब इसका मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो डायगोनल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस रूट 2a का स्क्वायर. करेक्ट. साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. ओके, सो ये होल थिंग का स्क्वायर होगा. डायगोनल का स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, लेफ्ट विथ 2. बेसिकली स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट इज नथिंग बट द नंबर इटसेल्फ. ओके, हट जाएगा रूट. सो यू विल गेट 2a स्क्वायर. a square plus 2a square is nothing but 3a square. Taking square root on both the sides. When you take square root, d square हो जाएगा d and 3a square है, so square root of 3a square. Again it will be root 3a. 3 रूट में रहेगा and square root of a square is nothing but a. Students, I hope it is clear to you. Basics clear रखो, surds and all that part. ठीक है, तो square root of a square is nothing but a, so that is why you will get a. ठीक है, so diagonal का length is nothing but root 3a. ठीक है, लेंथ का बात हो रहा है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एनीथिंग. ओके, मिलीमीटर भी हो सकता है. सो वी फाउंड द फॉर्मूले फॉर वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ डायगोनल. फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज a क्यूब. टोटल सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर. लैटरल सरफेस एरिया 4 वॉल्स का एरिया इट इज 4a स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज रूट 3a. ओके, now let us have a look at what is cross section and derive some formula using cross section. Now students, if I am considering this pen, okay, let's say this is a pipe. ठीक है, ये एक पाइप है. forget this part. ठीक है, ये पूरा ऐसे पाइप है. इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? Now if I consider this part, this circular part, this is the cross section of this पाइप. ओके, अगर मैंने इसको यहां से स्लाइस भी किया, मिडिल से स्लाइस किया, कहीं से भी स्लाइस किया, देन वो अंदर का पार्ट भी सर्कुलर ही होगा. ओके, सो कहीं से भी मैं इसको स्लाइस करूं, इट विल बी सर्कुलर. दिस एरिया, दिस सर्कुलर एरिया इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन. ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल. इफ आई कंसिडर दिस थर्मोकॉल. ओके, तो यहां पे दिस इज क्रॉस सेक्शन. ओके, नाउ ये क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है यहां पे. ओके, रफली स्क्वायर है. तो ये थर्मोकॉल को अगर मैं बीच से स्लाइस करूं, ठीक है, मैं ब्रेक ही कर रही हूं, बट इफ आई स्लाइस इट प्रॉपरली यूजिंग अ नाइफ, तो यू कैन सी ये भी प्रॉपर पूरा स्क्वायर होगा. अगर मैंने प्रॉपरली स्लाइस किया होता तो पूरा स्मूथ ऐसे स्क्वायर दिखता. ओके, ये भी सेम होगा. सो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन? ये जो थर्मोकॉल है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे थ्रू आउट इट इज हैविंग सेम एरिया. ओके, यहां पे जो एरिया है वही एरिया यहां पे है अंदर में, यहां पे भी सेम एरिया है, यहां पे भी सेम एरिया है, यहां पे भी सेम एरिया है.
ओके तो कहीं पर से भी मैं इसको स्लाइस करूं, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ईच क्रॉस सेक्शन विल हैव सेम एरिया। ओके तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया। ओके सम ऑब्जेक्ट्स हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अगर मैं पाइप कंसिडर करूं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ओके इफ आई कंसिडर, आई एम कंसिडरिंग वन मोर थर्मोकॉल पीस। ओके तो ये रेक्टेंगुलर है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये मैं इसको ब्रेक करूंगी, एक्चुअली आई एम ब्रेकिंग, इफ आई स्लाइस इट, यहां से मैं स्लाइस कर दूं, देन जो यहां पे मिलेगा अगेन रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर स्मूथ मिलता मुझे अगर मैंने स्लाइस किया होता। सिंस आई हैव ब्रोकन इट तो ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सो अगेन दिस इज रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर। ओके सो यू कैन सी क्रॉस सेक्शन इज सेम थ्रू आउट, पूरा थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन इज सेम। ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर, पीछे में भी रेक्टेंगुलर, कहीं से भी मैं इसको ब्रेक करूं मुझे जो क्रॉस सेक्शन मिलेगा वो रेक्टेंगुलर मिलेगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा, ये भी रेक्टेंगुलर मिलेगा, ठीक है। इफ आई स्लाइस प्रॉपर रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म अगर है, so for uniform cross section, any body having uniform cross section, volume क्या होगा? Volume is nothing but the area into height. Now when we considered this book का example, ये book हम लोग ने consider किया था, right? तो इसका volume क्या था? Area of this each page into the thickness, right? सो ये मैंने क्रॉस सेक्शन यहां पे कंसिडर किया था। हर एक पेज का एरिया सेम है, दैट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, राइट। सो मैं ये पेज कंसिडर करूं, ये कंसिडर करूं, कोई भी पेज कंसिडर करूं, सबका एरिया सेम है। सो आई कैन से दिस बुक इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यहां से लेके बैक तक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है क्योंकि एरिया सेम है। ओके सो एरिया इनटू दिस thickness, that is this height. Okay, area of cross section into height will give me the volume of the body. So if I consider this thermocol piece, this area of cross section, ये area ये height times multiply हो रहा है। okay, ये area यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पूरा थ्रू आउट अंदर में सेम एरिया है। तो area times the height will give me the volume of that body. So if I know the area of cross section, if I know the height, I can easily find out the volume of the body. So it is nothing but area of cross section into height. अब वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मली स्क्वायर या रेक्टेंगल ही मिलेगा बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली क्यूबॉइड एंड क्यूब। ओके सो इफ आई कंसिडर दिस थर्मोकॉल पीस, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। तो एरिया इनटू इट्स हाइट। ओके क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वही एरिया यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पीछे में है। तो एरिया टाइम्स द हाइट will give me the volume of this thermocol. All right, so area of cross section into height is the volume if you are given the area of cross section. Surface area excluding cross section, अगर मुझे surface area find out करना है, now इसका surface area excluding cross section मतलब ये and ये exclude करके ये जो है इसका एरिया, ठीक है। सो यहां से लेके यहां अगर मैं इसको रैप कर रही हूं, ओके, तो इतना जो मैंने ये रैप किया, ये क्रॉस सेक्शन ऊपर एंड नीचे का छोड़ के ओनली दिस, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सरफेस? सो सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग क्रॉस सेक्शन, मीनिंग एक्सक्लूडिंग दिस and this. All right, so ये सराउंडिंग, ये पूरा इतना सरफेस एरिया क्या होगा? नाउ मैं इसको गिफ्ट रैप से पूरा ऐसे ये कर रही हूँ, राइट, कवर कर रही हूँ। सो बेसिकली आई एम कवरिंग दिस सराउंडिंग एरिया, दैट इज दिस पेरीमीटर को मैं कवर कर रही हूँ, है ना। इसका पेरीमीटर
perimeter of this cross section, perimeter of cross section times the height, क्योंकि I am covering this outer portion, that is this perimeter, I am covering this perimeter, है ना, यहां से ये पूरा, but I am not covering only this much portion का perimeter, I am covering this पूरा, ये पूरा length का, right? So perimeter of the cross section times the height, perimeter of the cross section times the height will give me the surface area of this thermocol piece, okay, of that object. It can be cuboid, cube, okay. So ये आउटर पोर्शन कवर करना है, दैट इज पेरीमीटर कवर करना है, लेकिन ये पूरा हाइट तक कवर करना है. सो दैट इज वाई पेरीमीटर टाइम्स द हाइट. ओके, सो इट विल बी नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स द हाइट h. ऑल राइट. अगर मैं क्रॉस सेक्शन भी कवर कर रही हूं, यहां पे एंड यहां पे भी कवर कर रही हूं, तो ये एरिया भी कंसिडर करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो 2 बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐड कर देंगे, बट दैट इज नॉट देयर ओवर योर फॉर्मूला में. ठीक है, इन केस ऐसा कोई सम आया, देन पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, बेसिकली सारे सरफेस एरियाज ऐड करने हैं. ओके, बट व्हेन यू आर गिवन लाइक दिस क्रॉस सेक्शन, तो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू द हाइट, that will give me the total area that has to be covered. okay, total area जो मुझे कवर करना है क्रॉस सेक्शन को छोड़ के, ये और ये छोड़ के, एंड्स को छोड़ के. ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर. ओके, 3 डायमेंशनल है, सो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर, जो भी है, क्यूबिक मिलीमीटर. सरफेस एरिया, एरिया का बात हो रहा है 2 डायमेंशंस, सो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, जो भी है. Okay, so just write down the formulae and the units as well. Okay.